حجام الہ آباد کی میں جہاں ڈائگ پر کھڑا ہوں، یہاں سے نظارہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ گدلی گنگا، یہ نیلی جمنا، یہ گندیلی گنگا اور نیلی جمنا کے بیچ میں کہیں سرسوتی میاں ہے، جو آج تک کسی کو نظر نہیں آئی۔ ہم ان کے تینوں دریاؤں کو تربیتی کہتے ہیں، اور جی میں آئے تو ان کے ملاپ کی وجہ سے سنگم بھی کہہ ڈالتے ہیں۔ موڈ کی بات ہے۔ یہ سنگم یوں تو اب بھی بہت سے کام آتا ہے، لیکن کسی مرے ہوئے لیڈر کی ہڈیاں بہانے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ یہاں قلعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، مغل شہنشاہ اکبر نے بنوایا تھا۔ اس کی نگاہیں کتنی دور رس تھی، گویا وہ صدیوں پہلے جانتا تھا کہ چین کی طرف سے حملہ ہوگا تو یہاں پہنچتے پہنچتے رک جائے گا، کچھ دریا روک لیں گی، رہا سہا یہ قلعہ روکنے لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جمنا کا پانی آج تک اس قلعے کے پیر دھو دھو کر پیتا ہے۔ پیچھے الہ آباد کا شہر ہے۔ نامعلوم اسے کس فقیر کی دعا لگ گئی کہ ہر سال گنگا اور جمنا باڑھ آنے پر بھی یہ نہیں ڈوبتا۔ دارا گنج کے آس پاس کچھ جھونپڑیاں، کچھ کچے مکان ہیں، جن کی بلی دبی کریا پر پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی رچا پھٹی نہا کر اٹھ کھڑا ہوتی ہے۔ آج شہر پر کوئی دھند سی چھائی ہے، یا شاید لوگوں کی آنکھوں کا دھواں ہے۔ فضا کی سرد مہری جسے اوپر نہیں اٹھنے دیتی، نیچے زمین پر روکتی ہے، اور آسمان ٹوٹتا ہے۔ لوگ بڑی خوشی سے گھٹ گھٹ جانے والی ان آہوں کی پھر سے آنسو بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ دور بائیں طرف الہ آباد کا نیا اسٹیشن ہے، جو کمبھ کے موقع پر آنے والے بے شمار یاتریوں کے لیے بنوایا گیا ہے، اور جس پر ہماری سرکار کے لاکھوں روپے لگے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں اس اسٹیشن پر صرف یاتری ہی لوگ ہی اتریں اور ہم آپ بھی اتر پڑیں تو کوئی نہیں روکتا۔ یہ لوگ راج ہیں نا، جیسے سانچے داد کی پوٹ لگی ہے، جیسے بھانگ کی سنکھے کی پوٹ لگا دی جائے تو وہ بھی تیز ہو جاتی ہے، اسی طرح ہمارے یہ لوگ راج اور بھی نشہ آور ہو گیا ہے۔ اس اسٹیشن کے پیچھے سول لائن کا علاقہ ہے، جسے بنا تو انگریز گیا استعمال ہم کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ اس نے ایک گرجا بھی بنوایا جو بہت پکا ہے۔ پچھلی صدی میں چھاؤنی کے جتنے انگریز افسر مرے، انہی راہوں پر اب تک اس گرجے میں عبادت کرنے آتے ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں بہشت کی عیش آرام سے چھٹکارا دلوا کر ایک بار پھر الہ آباد کی چھاؤنی میں بھیج دے، تو گویا شام یہاں پرانا الہ آباد تیل میں سر بسائے، منہ کو گلوری میں دبائے۔ اس نے ماڈرن الہ آباد گلے ملنے چلا آتا ہے، کافی یا وسکی پی کر کسی مولوی کی طرف چوری کی مرغی بغل میں دبائے کہیں بھی نکل جاتا ہے۔ مجھے الہ آباد ہی کا سمجھو، یوں میں بلکہ بیلا ٹیکئی کا رہنے والا ہوں، جو یہاں سے 50-60 میل پرے ہے۔ میلا ٹکی کا رہنے والا ہے، یاد رکھیے گا، 50-60 میل پرے ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ برسوں پہلے اہیر بڈھے نے بیٹھے بیٹھے مونوں بھی سے سن پٹ ڈالی، سینکڑوں ہی روپے بنائے، لیکن سب کے سب میری پڑھائی پر ڈبو دیے۔ خود تو اندھا ہو گیا، پر مجھے دکھنے کا یہ کالا اچھر جو ہمارے دیش کی بہت سے لوگ
کو भैंस बराबर मालूम होता है, मुझे भी भोरी पड़ा नज़र आता है। मैं इसी उल्टी तरह बमरोली हवाई अड्डे पर क्लर्क का काम करता है। 10 बजे मुझे दफ्तर पहुंचना है। लेट हो गया तो मेरा सेक्शन इंचार्ज बहुत खफा होगा। वो बेहद नर्वस आदमी है और ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी है। मुझे अपना तो कुछ नहीं, अलबत्ता मुझे गाली देते हुए वो काम जाता है। मुंह पर झाग लाया और गिर गया तो फिर मेरा क्या होगा? लेकिन खैर, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। फिर अजाम लोकपति के गाहक भी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। हाँ, तो वह बमरोली के हवाई अड्डे पर जब मैं ऑफिस के लिए कैबिन में बैठा हूँ तो खिड़की से मुझे हवाई जहाज़ उतरते चढ़ते दिखाई देते हैं। रनवे छोटा होने की वजह से बड़ा सीट हवाई जहाज़ तो कोई नहीं आता, अलबत्ता छोटे छोटे भेंट से बीसियों आते हैं। जैसे मील चढ़े गुसल खाने में रेत मक्खी अपने आप पैदा हो जाती है, ऐसे ही ये जहाज़ एकाएकी आसमान के किसी कोने से टपक पड़ते हैं। अगरचे ये सब झूठे हैं, लेकिन आदमी इनमें से बड़े उतरते हैं। कभी कभी सांपों, रस्सी उतार लेने वाले मदारियों, हाथियों, राजाओं और महाराजाओं और नानका साधुओं की तलाश में बाहर से टूरिस्ट भी आ जाते हैं और हमें इतना सुखी देख कर बड़े दुखी हो जाते हैं। बस मेरा ताल्लुक़ बाहर की दुनिया से सिर्फ इतना है कि या फिर मैं अखबार या लीडर पढ़ डालता हूँ। अब लोकपति ज़्यादती कर रहा है। देखिए, मुझे अब अधमुंडा छोड़कर उसने एक और गाहक को पुकार लिया। मैं उसकी तरफ नज़रों की हाथ जोड़ते हुए कहता हूँ, दया करो लोकपति, मेरी हालत पर तरस खाओ। अभी लो हो, लोकपति कहता है। अभी लो बनोद होता है। लोकपति कहता है। अभी पेट से सफाचट हो जाता है और अपने इस तरह से वो गाहक के चेहरे पर एक खूबसूरत से खत बना देता है। जब ये एक और गाहक पकड़ लेता है जो मेरी तरफ चला आता है। मुझे दफ्तर जाना है, सबों को जाना है बाबुआ, समझो, सबों को जाना है। और लोकपति की आवाज़ें हार से मिली जुली एक फ़लसफ़ियाना सी जीत है, जिसकी बुनियाद हमारे सदियों के पुराने ग्रंथों और शास्त्रों पर कायम है। मालूम होता है उस वक्त मेरे दफ्तर में नहीं, भगवान के घर की बात कर रहा है। मरकज़ जहाँ सबों को जाना है। 8 हो गए, 8:15 हो गए। ज़िंदगी बीती जा रही है, दफ्तर बीता जा रहा है। यहाँ से घर, घर से दफ्तर, दफ्तर से शमशान। बीच में अज़ल ही से थकी हारी बीवी से झपट मार पीट के बजाय खाना भी वो भी पुकार करके कह रहा है, खाना ना खाना। सिवाय गोद के बच्चे के बाकी के सब या तो स्कूल जा चुके होंगे और या बाहर मिट्टी पर रुक जा रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ रुक ही जाए तो अच्छा है। अरे हाँ, एक बात तो आपको बताया ही नहीं, मैं जौहर नगर में रहता हूँ, जिसे बने बहुत अरसे हो गया। जौहर नगर में रहता है। हाँ, एक बात तो बताना भूल जाता है, कौन जौहर नगर में रहता है। इसलिए सारा नगर धूल मिट्टी से उठा है। मैं मिट्टी की बहुत पसंद करता हूँ। एक तो मैं इसलिए कि मेरा और आपका सबका ख़मीर मिट्टी से उठाया गया है, और दूसरे इसलिए कि जब तक किसी बच्चे को मिट्टी का चंबन न मिले वह पनपनाता ही नहीं। 20-20 रुपया पाने वाले, ट्यूशनों पर जीने वाले स्कूल के टीचर इस बात के महत्व को क्या समझें? ज़रा किसी बच्चे के कपड़ों पर मिट्टी देखी, उल्टा माँ के पास भेज दिया। जब पहले ही गर्भवती है, औरतों की ज़बान में उसे वो भी तो
पाजामे से भी छू जाए तो पीठ हो जाए। नीचे डाइक भी भरी भरी सी है, या शायद दफ्तर से लपेटा हो जाने के डर है, जिसके कारण ज़मीन पांव तले से सरकटी हुई नज़र आती है। मालूम होता है जैसे बरसों पहले कुंभ के मेले ये जो सैकड़ों हज़ारों लोग स्टैम्प में दब गए थे, उनमें से कोई बच गया और इस मनु मिट्टी को सर पर से हटा डालते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मालूम नहीं होता जैसे दरे नीचे से एक कोर्स की आवाज़ आ रही है, आहिस्ता चल, हो सके तो चल ही मत। तेरे कदमों के नीचे से हज़ार जाने हैं, तेरे कदमों के नीचे हज़ार जानों हैं। लोग जैसे पाताल से निकलते जतन कर रहे हैं। किले के अंदर जहाँ ऊपर बंदर है, नीचे मंदिर है, कोई कृष्ण जी को, कोई महावीर जी को और कोई काली मैया का। वो सब किले में ज़मीन के नीचे कुछ यूं दबे हुए हैं कि उनके अंदर जाने से भी डर लगता है। लेकिन अगर इंसान आसमान को थगली लगा सकता है तो चांद सितारे से गले मिल सकता है, तो क्या नीचे पाताल तक ही नहीं पहुंच सकता? इस गाय के सींगों को नहीं छू सकता जो सदियों से हमारे इस धरती का बोझ उठाए खड़ी है, और फिर एक सींग पर उस जिसे के कारण हमारी ज़मीन सूरज को टेढ़ घूमती है, बेकार के मौसम बनाती रहती है। आज बोस पड़ी रही है, कल झुलस देने वाली जल रहे हैं, अभी बारिश से बराबर बर्बाद हो रहे हैं, फिर डरने लगते मर रहे हैं, और फिर उड़ने लगने से मर रहे हैं। अब के जो लोग पाताल से आए हैं, अजीब से खबर है। उनका कहना है बस संगम बदलते ही वाली है, जिससे सारी दुनिया हिल जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा। नीचे ऊपर का नीचे, दाएं बाएं, देर तक ज़मीन का बनी रहेगी, आखिर थम जाएगी, सदियों तक थमी रही है। फिर गाय उस वक्त तक सींग बदलेगी जब सांस इतनी तरक्की कर जाएगी कि हिल धरती पे चलने की बजाय धरती हिलना चलने लगेगी। औरत के पीठ में खाली हवा रह जाएगी और मर्द के पीठ में बच्चा। लोकपति का नया गाहक चिल्ला रहा है। बात यह है कि उसके नए गाहक को हजामत शुरू करके उसके चेहरे पर 3-4 खूबसूरत से खत लगाकर लोकपति से उसके गरीब को भी बेच ही में छोड़ देता है और एकाएक ही गाहक को पकड़ लाता है। और वो भी पहला गाहक लोकपति से डर रहा है, उसे गाली दे रहा है। अरे ये क्या हुआ दाई लॉर्ड साहब, यह पहला गाहक चुपके से चल दिया। वो मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसे जानता हूँ। अगर सीन हाँ जल तरी, तो यहाँ कैसे? वह मुझे देखते हुए कहता है, यूँ मेरा नाम बुद्धान चंद्र है। उसका नाम बुधान चंद्र रहता है। लेकिन मेरे विजिटिंग होने के लिए वजह से वह हमेशा मुझे जलतरी ही कहकर पुकारता है। अंदर के बुद्धा सिंह को याद रहे, बुधान चंद्र को क्या कहते हैं? बुद्धा चंद्र को जलतरी कहता है। और भी उसे नहीं बताता कि जलतरी असल में मछली को कहते हैं जो मानुष से बनी होती है। अगर रूह हो और कतला हो तो उसमें फिर नाम के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर कहीं मेरी तरफ डाइवर्ट हो तो रीढ़ की हड्डी होती ही नहीं। फिर मुझे जलतरी पुकारने के लिए एक और वजह भी तो थी। पहले चुनाव में मैंने कांग्रेस के वोट दिया था, आज तो वो लोकपति खफा था, वरना हमेशा वो मुझे माँ बहन की मोटी मोटी गालियाँ दिया करता था।
मेरा बड़ा मित्र है। मैं कहता हूँ, भाई मैं तो स्नान करने आया था, सोचा हजाम ही क्यों ना बनवाता चल जाऊँ। अपना उस्तरा ज़रा गंदा हो गया है, कोई सिल्ली ही नहीं मिलती इसे लगाने तेज़ करने के लिए। तो तुम भी सेफ्टी इस्तेमाल करते अगर मुझे पूछता। हाँ, मैं कहता हूँ सेफ्टी के साथ मज़ा नहीं आता। तिफ अगर सर हिलाते हुए कहता है, हम इसे इस साइंटिफिक लोगों की वजह से है जो इधर बीवियों को और फिर उधर देश भर की मुसीबत पड़ी हुई है। खामखा के दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती जा रही है। तो फिर क्या करना चाहिए? तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को तो खस्सी ही देना चाहिए। उससे तो अच्छा है हजाम के लिए वहाँ सैलून चले जाया करो। ना भैया, मैं कहता हूँ सैलून महंगा पड़ता है, घर ही अच्छा है। तो आज उनके चक्कर में कैसे पड़ गया, क्या बताऊँ यार। अगर दाढ़ी के इस कटे हिस्से पर हाथ फेरते हुए कहता है, सोनानाथ से मेरे मौसा दीनानाथ आए थे कहने लगे संगम पर नहाएंगे। मैंने कहा, नहाइए, मेरा क्या जाता है, जब तक मैं हजाम बना लूँगा। और यूँ मैं उन कंपनियों के चक्कर में फंस गया हूँ इन कमीनों के चक्कर में फंस गया हूँ। अगर सीन की तरफ देखकर हंसता हूँ, लोकपति उसके चेहरे को क्या खूबसूरत डाक बंगला बना दिया है। यानी कि मकान भी है और दुकान भी है, और एक तरफ सफ़ेदी दूसरी तरफ स्याही। मालूम होता है अपने ही साथ मुंह काला कर रखा है। और फिर यकायक मेरी हंसी बंद हो जाती है। मैं भी ऐसा ही बूदम लग रहा हूँ। अगर सीन कहीं मुंह नहीं दिखाए सकता तो मैं भी दफ्तर नहीं जा सकता। एक हमदर्दी की नज़र से अगर सीन की तरफ देखते हुए मैं अपनी बाहें उसकी गर्द डाल देता हूँ और कहता हूँ, कोई बात नहीं दोस्त, ज़िंदगी में ऐसे होता रहता है, ज़िंदगी ऐसी ही तैसी। अगर सीन एकदम आग बगोला होकर कहता है, बजाय इसके कि उसकी तसल्ली हो, मेरी मदद के लिए अल्फाज आग पर तेल का काम करता है। और वह गालियाँ जो मुझे दिया करता था हजामों को देने लगता है। उसके हर बात में नफ़ाखोरी उसलिए पूरे मुल्क का बड़ा गर्क कर दिया है। और फिर ये क्या गाली पहले से ज़रा छोटी उम्र की, और फिर कंवारी से मुझे बड़े जलन होती है। मालूम होता था मेरे बजाय उसने लोकपति को अपना साला बना लिया है। सुनो गुर, मैं पूछता हूँ, तुम कब से अहिंसा के कायल हो गए? क्या करता? अरे लगाते पकड़ के उसे दो चार। और ऐसा करने में मैं अपना मुक्का ज़ोर से हवा में घुमाता हूँ, मुंह में गालियाँ मनमनाता हूँ जो मुझे नामर्द लोग करते हैं। क्यों तुमने उसकी पिटाई ना की? कैसे करता? अगर सिंह हजामों की तरफ देखते हुए कहता है, वो सामने कैबिनेट में होना है ना, उसमें जितने बैठे हैं उन सबको हाथ में एक एक उस्तरा है। फिर हम दोनों मिलकर हंसते हुए हैं एकाएक ही खफा हो उठते हैं। फिर एक दूसरे के लंडोरे से मुंह की तरफ देखकर खुल कर हंसते उठते हैं, खिलखिल उठते हैं। आखिर उसके नतीजे पर पहुंचते हैं कि जैसे किसी भी हैं अपने देश के नाई हैं। हमारे बेटे बेटियों की यही रिश्ता लाने वाले हैं। हमें इसे सामने झगड़ा मोल लेना नहीं चाहिए। आखिर तो अपने गला उन्हीं के हाथ में आना है। संगम पर औरतें नहा रही हैं। उनमें से एक का जिस्म अच्छा नहीं है, किसी का पेट लटका हुआ है तो किसी की टांगें और ऊपर उठी हुई है। मालूम होता है नेशनल बैंक टेलर है जो ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ पब्लिक के साथ बिजनेस कर रहा है। एक बुढ़िया है शहर के गवारों से जिसकी ममता का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया है, और फिर हजारों बीज डालकर वो वापस लौट आया है। अरे लगता है बिगड़ के दो चार
और ऐसे करते हुए अपना मक्का ज़ोर से हवा में घुमाता हूँ। मुँह में गालियाँ मनमनाता हूँ, जो सब नामर्दों लोग करते हैं। क्यों तुमने उसकी पिटाई ना की? कैसे करता? उसे सीन जम उस अगर उगर सीन हजामों की तरफ देखते हुए कहता है, ये सामने कैम्बेंट है ना, उसमें जितने बैठे हैं सबके हाथ में एक उस्तरा है। फिर हम एक दूसरे पर हंसते हैं, एकाएकी खफा उठते हैं और फिर एक दूसरे के लंडोरे मुंह की तरफ देख कर हाँ लंडोरे मुंह की तरफ देख कर खिलखिला उठते हैं। आखिर उसके नतीजे पर पहुंचते हैं कि जैसे कैसे भी हैं अपने देश के नाई हैं। हमारे बेटे बेटियों के यही रिश्ता लादने वाले हैं। हमें उनसे सामने का झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए। आखिर तो अपना अपना गला उनके ही हाथों में आना है। संगम पर औरतें नहा रही हैं। उनमें से एक का जिस्म अच्छा नहीं है, किसी का पेट लटका हुआ है तो किसी की टांगें ऊंची ऊपर उठी हुई हैं। मालूम होता है नेशनल बैंक के टेलर है, जो ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है। पब्लिक के पब्लिक के साथ बिजनेस कर रहा है। एक बुढ़िया है, शहर के गवालों ने जिसको ममता ममता का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया है, भरे बाजार में बीज डाला है, पीठ से लगा हुआ है। उसका पीठ सूखी मुर्गी टांगे और तिपट से झपट से बाजू हैं, जो देख में ऊपर उठकर सूरज भगवान को अंजलि अर्पित करती है। हाँ, अंजलि अर्पित करती है, लेकिन असल में लपक लपक कर केंद्रीय सरकार के महकमा खुराक की जान को रो रही है। जैसे हमारे तस्वीर या पत्थर पर बंजाली विदेशी पहुंची है और वहीं के हाँ 4:30 रह जाते हैं। गाय घोड़े और बकरी में 4, मुर्गी भेड़ में 3, हाँ कीड़े मकोड़े में 2 और फिर सब्जी में 1। इसलिए फल और सब्जी भी से पेट का नर्क भरना अच्छा। आखिर एक तो हाँ तत्वों का नाश होना है ना। अरे याद आ गया, मिट्टी अगरचे उपजाऊ होती है, उस पर भी उसमें आधा या कोई भी तत्व नहीं होता। इसलिए मिट्टी को खाना चाहिए। मैं बुद्धा चंद पर पुरखों से अच्छा हिंदू होने के कारण कल से मिट्टी ही का भोजन क्या करूँगा। कुश्ती वाले धड़ा श्रद्धा मारे लोगों के बीच मझधार के लिए ले जा रहे हैं, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती मिलती हैं। पंडित लोग पूजा करके पूजा के फूल कटोरियों में लिए उठा दिए हैं और मुख्तलिफ बहानों से पैसे बटोर रहे हैं। हाँ, फूल ज़मीन पर थोड़े उगते हैं और वह ज़माना गया जब कंबल अपने आप खुल जाया करते थे और धरती का अलमास ऊपर चला आता था और इसकी छातियों पर मोतियाँ गिरने और मरावने के साथ चंबेली के गुलाब और सदबर्ग के नक्श पर निगार बना दिया करता था। ये लीजिए 9 बज गए, अब हम जच होने लगे हैं। मैं अगर सीन दोनों टहलते हुए लोकपति की तरफ जाने लगते हैं। जब भी लोकपति का चौथा गाहक भी अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है, अगरचे मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन शक्ल में वह अपने बरादरी के लगते हैं। मैं ज़रा हिम्मत करके आगे बढ़ता हूँ और उसे पूछता हूँ, क्यों भैया, क्या हाल है? अच्छा है, वह कब झपट कर कहता है और वह कुछ छिप कर कहता है, क्या देख रहे हो? यही दुनिया का रंग। और फिर वह दाढ़ी के ऊपर अनकटे हिस्से पर हाथ फेरने लगता है। क्या देखते हैं कि हम तीनों हंस रहे हैं और फिर एकाएकी तीनों ही खपा उठते हैं। मैं गुरसीन से कहता हूँ, ये ठीक नहीं है।
ये ठीक है। लोकपति के हाथ में अस्तूरा है। लोग अगर हम चारों तरफ मिलकर उससे झपट पड़ें तो वह हमारी दाढ़ी साफ करे या ना करे, हम ज़रूर उसकी तबीयत साफ कर सकते हैं। अगर शक व शुबा की निगाह से मेरी तरफ देखने लगता है, जैसे कह रहा हो चारों मिलकर मिलेंगे, गोया कि हम चार कभी मिल ही नहीं सकते। अगर मिल गए तो फिर हम हिंदुस्तानी नहीं, ज़रूर हमसे किसी की रगों में विदेशी खून दौड़ता है। अगर मुझे दफ्तर न जाना होता तो भाई मैं तो ज़रूर इसके साथ मिल जाता। हाँ, ये चौथा भाई हमारा, खुदा मालूम उससे क्या आइडियोलॉजी है। हमारा चौथा भाई बंगारने लगता है। वो लोकपति उसके साथियों के खिलाफ जहर उगलने लगता है। ये लूट खसोट, ये नफ़ाखोरी गैर कानूनी, गैर जमहूरी है। हमें इसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए, बगावत करनी चाहिए। और फिर वो दूर ही से हजामों को धमकियाँ देने लगता है। जब वो शुरू हुआ था तो मैं समझा उसके हाथ में उस्तरे से भी तेज़ कोई हथियार होगा। जैसे घुमाते हुए वह ज़ोर से ललकार देगा। दुनिया जहाँ की उस मंडे लोगों को उकसा भड़का अपने मदद के लिए आमादा कर लेगा। लोकपति उसके साथियों का खून कर डालेगा। लेकिन ये जानकर दुख भी हो रहा था कि हंसी भी आएगी कि वो भी हमारी तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कायल हो गया है। जहाँ हम तकरीर करके हार चुके हैं, वो दुनिया भरती होने की वजह से अभी तक खुश है कि आलम में चिल्ला रहा है। ज़मीन से 4-4 फीट ऊपर उछल रहा है और फिर उछलता है तो कुछ आगे बढ़ने के बजाय वो थोड़ा नीचे हट जाता है। ये लोकपति, वह कहता है, कहीं बाहर से दो छह पड़ आता है, अपने आप को खुदा समझने लगा है। दुनिया जहाँ की बहू बेटियों से आंखें लड़ाता फिरता है, नहीं जानता कि उसने अपने आप घर में क्या हो रहा है। जब वह अपने काम में मशगूल होता है, उसकी बीवी स्टल वाले एक सेठ के साथ रास रचाई हो रहती है। लड़की एक सेठी के पीछे भागती फिरती है और लड़का जो चोर बाजार की गोटों की तवाइफ करता है। चौथा भाई हमारा यहाँ के सब हज्जामों को जानता है, सबके कच्चे चड्डे खोलकर हमारे सामने रखता है। इसलिए बताता है, मैं 3-4 अच्छे हज्जाम थे जो पूरी हजामत बजाने के कायल थे, लेकिन बदकिस्मती से वो एक एक करके मर गए और यहाँ बाकियों के शोर मचाने की वजह से निकाल दिए गए। वह सब लोकपति के दोस्त थे और उनके वजह से लोकपति सब कुछ कर सकता था, क्योंकि उसके सूझबूझ अच्छे थे, नीयत साफ थी। लेकिन उनके पीछे जाने वाले के बाद वह अकेला रह गया था। मजबूरन उसे दूसरे की हरकतों पर खामोश रहना पड़ा था। वह खुद ही भी वही करने लगता जो उसके बाकी हज्जाम साथी करते थे। उन हज्जामों में अलावा दूसरे डरपोक से बाबू बैठे हैं, उनके खेल के कायदे के कानून से वाकिफ़ हो चुके हैं। इलाहाबाद शहर, जिसके नीचे कहीं सरस्वती बहती है, किसी ऐसे शख्स को जज्ब नहीं कर सकता जो पढ़ लिखा ना हो। अगर इत्तेफाक से कोई अनपढ़ आ भी जाए तो चंद ही दिन में वो इतने बढ़ जाता है कि यूनिवर्सिटी का कोई भी अच्छे से अच्छा विद्यार्थी उसका मुकाबिल नहीं कर सकता। इलाहाबाद के हज्जाम आदमी बड़े मज़े के हैं, खूब दूर की सोचते हैं, लंबी चौड़ी चनाई उठाते हैं, लेकिन उसके जामा पहनना तो एक तरफ नंगा भी घूमने नहीं देते। आपस में मिलकर कुछ खुश्ती सी करते रहते हैं, गोशिटी करते रहते हैं। उनमें से एक शायर है जिसका नाम चंदभान है, जो देव तखल्लुस रखता है। हिंदी के छंद से उर्दू को अक्लमंद समझता है, हिंदी के फंदे से उर्दू का अक्लमंद जानता है। तबीयत इस कदर हाजिर है कि वह स्पर्श की बजाय देव बाग पसंद करता है। जानता है देखिए शायर का नाम क्या है, चंदाभान, और देव नाम रखता, क्या रखता, देव जो तखल्लुस रखता है उसका नाम क्या, चंद्रभान। तबीयत इस कदर हाजिर है कि बजाय देव बालक पसंद करता है। जानता है कि
जानता है ना कि औरत से प्यार तो एक कुदरती बात है, लेकिन मर्द से प्यार सर्वोच्च कला है। एक दिन पीछे बैठे चंद्रभान दियोग ने बहुत पी ली और रोया के आलम में, रोदिया के आलम में बहुत रोया। इतनी यकीन हो गया कि वह पैगंबर है। हाय, दुनिया ने नहीं समझा। मैंने कहा, कोई बात नहीं देवोग, देवोग जी, दुनिया आज नहीं तो कल आपको जरूर समझ लेगी। फिर मधु मदा सब राज हैं, भान दियोग फिर खुल गए और वह नशे में धुत रहने लगा। और वह जीवन के रंग में मंच पर आता था तो खूब ही लड़खड़ाता। लोग उसके लड़खड़ाने को भी अभने की एक किस्म समझते। जैसे नाचते उसके बाकी साथी तो रंग मंच के रंग में गए सो गए। चंद ही बरसों की बात है, इलाहाबाद के उन हज्जाम में पंजाब का एक हज्जाम आ गया। बस फिर क्या था, सब लट लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े और उसे निकाल कर फेंकने की तरकीब डालने लगे। लेकिन वो भी एक ही बदमाश था, बाकायदा सीना तान कर सामने खड़े हो गया। अगर किसी ने एक अस्तूरा निकाला तो उसने दो निकाल लिया। बाकी हज्जाम डर कर बैठ गया। सामने फिर होकर लड़के ने की बजाय नीनी बात करने लगे। फिर घास सब कुछ समझ गया। उसने अपने कैबिन के पीछे से कुछ तख्ते लगाकर एक खिड़की बना ली और उस पर एक पाउडर लगा दिया। लोग शक पर पड़ी। उसी दर्रे पर इक्के उनके पीछे एक हज्जाम भी चला आया। लोग समझते थे कि उनके कारोबार क्या चलेगा जिसके अपनी शेव नहीं बने हो। लेकिन साहब, जो अंदाज़ा सियाने का होता है, दीवाने का नहीं होता। अलबत्ता उसके पास ज़्यादा गाहक आने लगे। वह जानते थे कि नाक के बालों के बारे में जितना ये जानता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। अगर उसे बालों से मोहब्बत होगी तो वह उसे प्यारे से शेविंग हो जाएगा। अगर राह चलती लड़की गाल से गाल रगड़ेगी तो नफरत हो जाएगी। तो यूं घूंटती से उखाड़ फेंकने का 7 जन्म तक थोड़ी ये बाल उगेंगे, ये दिमाग में ख्याल पैदा हो। ये चौथी भाई, हमारे संगम के नाइयों के बारे में भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर सीन को देख आँख मारता हूँ और कहता हूँ, भाई मैं तो चला साढ़े टांगे यार, नींद आ गया। चौथा भाई सर हमारा संगम के नाइयों के बारे में है और बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर सीन को आँख मारता हूँ, कहता हूँ, भाई मैं तो चला 9:30 हो गए। अगर हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहता है, ऐसे ही चल दोगे जलतरी? क्या करूं? मैं कहता हूँ 11 तो बीवी ही चले जाएगी ना, तो नौकरी तो नहीं जाएगी। हसरत की नज़रों से लोकपति को देखते हुए चल देता है, जिसके हाथ में अब तक ग्राहकों का तांता बंधा हुआ है। मेरे मन में ये ख्याल चिटकी की लेटता है कि शायद लोकपति अब भी मुझे बुला ले। अगले 5 मिनट में नग सुख से दुरुस्त हो जाए। लेकिन साफ लोकपति को कहाँ वक्त है। उसमें रक्षा लेकर घर पहुंच जाता है। विद्या, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। हाँ जी, क्या हुआ? चौखट पर मेरे आहट सुनते हुए बोल उठी है। क्या हो गया? और यूँ पूछता हूँ, क्या भांग पी कर आए हो? मैं कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वह कह जाती है, इतना भी ना सोचा।
दफ्तर का वक्त हो गया तो तुम बस कोई बातें करने को मिल जाए। जब भी उसकी निगाहों में मेरे चेहरे पर पड़ती है, मियारी 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 वह कहती है, ये क्या? और फिर वो दुपट्टा मुंह पर हाथ करते हुए हंसने लगती है। फिर उस पर बस नहीं, पड़ोसी पड़ोसी में आवाज़ देती है, जगन भैया, अरे ज़रा उनको देखो। मैं हाथ जोड़ता हूँ विद्या, भगवान के लिए, और फिर वो खुद ही देखने के लिए हाथ मेरी दाढ़ी की तरफ बढ़ा देती है। खबरदार, मैंने हाथ झटकते हुए खफा में होते हुए कहता हूँ। तो हाथ लगाएगी तो मैं लात लगाऊंगा। और फिर मैं सोचता हूँ, इसमें बेचारी का, विद्या का क्या कसूर है? मैं सर्द आह भरते हुए मैं उसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ शुक्र करो तुम औरतों के हजाम किसी लोकपति ने नहीं, तरबोगपति ने बनाए हैं। ऐसा करने में मैं और ऊपर भगवान की तरफ इशारा करता हूँ। मैं और थोड़ी मुसीबत हैं हमें और थोड़ी मुसीबतें हैं। विद्या कहती हैं, तुम्हें तो सिर्फ एक हजाम बनवाने की पड़ती है। उनके बाद विद्या खाना निकालने लगती है। गुस्से में कहता हूँ, आज खाना नहीं खाऊंगा। वह हाथ मलते हुए कहती है, हाय जी, क्या अनर्थ है। गिरे गधे पर से और गुस्सा गरीब कुम्हार पर निकाल रहे हो। फिर मैं सोचता हूँ, खाने के साथ मेरा क्या झगड़ा। अच्छा लाओ खाना। विद्या खाना परोसती है। मैं जल्दी जल्दी तो निवाले मुंह में डालता हूँ, जो ऊपर से नीचे जाने के बजाय नीचे से ऊपर जाने लगते हैं। मालूम होता है मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, खाना मुझे खा रहा है, या कोई निवाली गरम करने बैठा हूँ। हाँ, खाना खाते हुए महज हमदर्दी हासिल करने के लिए विद्या के सामने अपने आप को मुसीबत की दास्तान दोहराता हूँ। वह बेचारी भोली भाली भोली भाली नहीं समझती कि उसने मुंह से निकाला एक ही हमदर्दी लफ्ज़ मुझे कितना दुख पहुंचाएगा। मेरे ब्याह के आखिर में वो कह उठती है, हाँ, टपकी पड़ी अंगूरों पर आज दफ्तर मत जाओ। क्यों? खामखा क्यों तमाशा बनना। ऊपर मैं एकाएक ही भड़क उठता हूँ। क्या मतलब? मेरी शक्ल में ऐसे भी तमाशा दिखाई दे रहा हो? कम से कम उसे तो ये नहीं कहना चाहिए था, मैं दफ्तर नहीं जाना चाहता, नहीं जा सकता, तो घर में नहीं आ सकता। विद्या को गालियाँ देने लगता है। वो दरअसल मुझे संगम की नाइयों के देना चाहिए था, या अपने आप को। विद्या अंदर चली जाती है और मैं समझता हूँ मुझसे डर गई। लेकिन वह बाहर आती है, हाथ में एक कटोरी लाती है जिसमें गर्म पानी है, दूसरे हाथ में शेविंग स्टॉल और स्तूरा, सेफ्टी नहीं, वही लोकपति वाला। मैं सोचता हूँ, चलो उस्तरा गंद है तो क्या, ज़रा ज़ोर से लगाओ तो बहुत ठीक हो जाएगा। फिर बजाय उसके लोग मुझ पर हंसे, मैं उन पर हंसूंगा। चुनांचे जल्दी जल्दी चेहरे पर झाग पैदा करके मैं उस्तरा फहराना शुरू कर दिया। लेकिन साहब, उस्तरा है कि कहीं भी टिकने को बजाय ऊपर से ऊपर फिसलता हुआ थोड़ी पर आ जाता है, जैसे पार्क में प्लेनिंग रोस्ट्रोम से बचे के एक दम फिसलते हुए नीचे आती रहती है। मैं चिल्लाकर पानी की कटोरी से नीचे टपका देता हूँ, उस्तरा दूर फेंक देता हूँ। क्या बकवास है। नंगा रोता हूँ, मुँह उस्तरे ले लेता हूँ। तेरे मैके वाले ने हाय जी, विद्या कहती है, उन्होंने तो ठीक ही लेकर दिया था। हाँ, तुम ही से सिल्ली गुम कर दी। किसने सिल्ली गुम कर दी? तुमने। रोज़ निकाल कर बैठे रहते और यही सोचते हुए चल देता हूँ। गंगा में जल परवान किसी माँ मुर्दा है। क्या पागलपन है हमारे पूरे कौम का। और मुझे याद आता है वो दिन जब मैं घायल की तरफ गंगा में नहाने
निकल गया था। सर्दी और गर्मी बीच के दिन थे। गंगा में जब बाढ़ नहीं आई थी और दरिया में ही मैं छाड़ के खुद किनारों से बहुत दूर चला गया था। मुझे दरिया और चश्मों पर बहुत शौक़ है और बालेग कुत्ते का काटा हुआ जितना नाली को देख कर डरता है, उतना ही मैं पानी के नज़ारे से खुश होता हूँ। पहले किनारे के पास की चुगनी मिट्टी पीठ पर मलता हूँ, जिससे जिस्म की बीमारियों को तो क्या, दिल और दिमाग की भी सारी उलझनें जाती रहती हैं। फिर उलट चेस्ट का सरदर्द हाथ लेता हूँ, जिसमें अपने बदन के नहायत शर्मनाक हिस्से को पानी में डुबोकर एक हाथ से पानी पीठ पर डालता हूँ और दूसरे हाथ से पीठ को खूब ही ज़ोर से मलता हूँ। अंदर आते हरकत में आ जाती हैं। मेरे हुए टिश्यू भी ज़िंदा हो जाते हैं। मरे टिश्यू भी ज़िंदा हो जाते हैं। फिर किनारे पर खड़े होकर तौलिए के बजाय हाथ से पूरा जिस्म रगड़ता हूँ। रोम रोम जाग उठता है और बदन स्कूल की लड़की के बदन की तरह नर्म और चिकना हो जाता है। चूँकि नंगा होता हूँ और सब की तरफ देखता हूँ, इसलिए मेरी तरफ कोई नहीं देखता। बंदर भी घबरा कर भाग जाते हैं। शायद समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई आ गया है। चुनांचे उस दिन बात लेने के लिए गया तो क्या देखता हूँ कि एक इंसानी खोपड़ी पड़ी है, जिसके साथ रीढ़ की हड्डी लगी है। ज़रूरत किसी विद्या की बहन या उसके भाई का जल परवाह हुआ होगा। मुझे इसका इतना नहीं लगा जितना उसकी बात का कि बाएं हम हिंदुस्तानियों की भी रीढ़ की हड्डी होती है। ये नहीं हो सकता किसी और कौम का कोई अगर यहाँ डूब मरा हो, मगर ऐसा तो हो दुनिया में जहाँ अगर कोहराम मच जाए, वहाँ लोग रग लगाकर पूरी बालों को छान मारे और अपना मुर्दा भी यहाँ से निकाल कर ले जाए। इस खोपड़ी से कुछ परे में होकर किनारे पर कपड़े रखते हुए मैं पानी में उतर तो देखता हूँ कि पास में एक अज्जल ऊपर पवान चल रही। सच मुझ का एक मुर्दा पड़ा हुआ था और अब जल की परवाह न थी। उसके बदन का गोश्त मछलियाँ खा चुकी थी। अगर मैं भूलता नहीं तो मुर्दे के नीचे होते चेहरे के एक तरफ दाढ़ी थी और दूसरी तरफ सफ़ा चट था। आज के तजर्बे से मैं इस बात का अंदाज़ा करता हूँ कि मरने से पहले वो ज़रूर संगम पर आया होगा और वहाँ किसी की लोकपति चंद्रभान या कोशक से हजामत बनवाई होगी। खैर, मैं अपने कपड़े को पकड़ करके दरिया के ऊपर की तरफ हो लिया ताकि गाजी मर्द के घिनौने बदन से लगा हुआ पानी मुझ तक ना आए। एक बार फिर कपड़े रख कर दरिया में उतरा ही था कि पानी में से दो टांगें बाहर उठती हुई दिखाई दी। मैं भाग गया और जब से मैं दर घाट तो क्या किसी सावित्री घाट पर भी नहीं इरादा नहीं किया। और ये विद्या मेरी बीवी एक अजीब तरह की पागलपन में अपना जल परवान करने को कह रही है। ना बाबा ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद भी किसी की टांगें यूं पानी से बाहर उठी हों। बाज़ार जाता हूँ तो वहाँ एक मुसलमाने से मेरी लड़ाई होने लगती है। एक पल में यूं नज़र आने लगता है जैसे शहर भर में हिंदू मुसलमान फसाद होकर रहेंगे। कश्तियों के पुश्त लग जाएंगे। ये बात नहीं कि वो मेरे तरफ देख कर हंस दिया। उसने कोई ऐसी बात नहीं की। अलबत्ता वो एक शेर गुनगुनाता रहता है। वह अजीब पर्दे का है। चिलमन के से लगे पीछे बैठे हैं।
یہ عجیب پردہ ہے، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، سانپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ہاں، ایک گنگناتا رہتا ہے، وہ مسلمان شیر گنگناتا ہے، یہ عجیب پردہ ہے، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، یہ عجیب پردہ ہے، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، سانپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اس نے صرف ایک بار میری طرف دیکھا تھا اور میں نے سمجھا وہ شیر مجھے پر چپکا رہا ہے۔ میری آدھی موڈ بھی ہوئی اور آدھی مذاق اڑا رہا ہے، مگر جب کہ کوئی مسلمان اللہ رسول کی قسمیں کھاتا ہے تب تو مانتا ہی پڑتا ہے۔ یہ طے بات ہے کہ وہ یوں ہی اپنے البیلے پن میں شعر پڑھ رہا ہوگا اور میں اپنی نرز کا شکار اسے غلط سمجھ گیا ہوں۔ میں دفتر پہنچتا ہوں لیٹ اور چپکے سے اپنی سیٹ پر جا کر دبکتا ہوں۔ یوں کام میں لگ جاتا ہوں جیسے صبح ہی سے مرنے کی فرصت نہیں، اور قریب 2 گھنٹے سے اس دفتر میں نزاع کے عالم میں رہا ہوں۔ کلرک میرے سر میری طرف دیکھتے ہیں، ہاں، کھل کے ہنستے ہیں اور بار بار میری عیادت کے لیے آتے ہیں۔ اس عرصے میں میرا سیکشن انچارج صرف ایک بار میرے پاس آتا ہے۔ میں بہت کچھ اپنا چہرہ اس سے چھپانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جبھی لوگ بک کے کم ہونے میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بھول کر مجھے اس کی طرف دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ اٹھتا ہے، آج تم سنگر پر گئے تھے؟ جی سر، میں جواب دیتا ہوں، اور میرا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف اشارہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ ڈرتا لرزتا ہوں کہ نہ معلوم اب وہ مجھے کیا کہیں گے۔ لیکن صاحب، وہ ایک ایسی بات کرتا ہے کہ میں سوچتا رہ جاتا ہوں کہ اس بات سے میری داڑھی کا کیا تعلق ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ چہرہ کانوں تک تمتماتا اٹھتا ہے اور اس کے اس منڈے میں حصے پر ایک عجیب سی سرخ خراش نظر آنے لگتی ہے۔ میں جتنا اسے کھجاتا ہوں اتنا ہی اوپر سے نیچے تک میری خراش بڑھتی جاتی ہے۔ میں کام کے بیچ سے اٹھ کر اپنا جی لگانے کے لیے باہر چلا جاتا ہوں۔ کچھ ٹورسٹ آتے ہیں جو میری طرف بالکل نہیں دیکھتے۔ باہر کے لوگوں میں یہی ہوتا ہے۔ ہاں، اس وقت آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بنارس سے۔ میں سارناتھ میں بدھ کا ستوپ دیکھنے گیا تھا۔ اور پھر وہ اپنا بیان جاری ہوتے کہتا ہے، وہاں کی گاڑی میں آیا ہوں اور جہاز کا انتظار کر رہا ہوں۔ ستوپ اچھا لگا آپ کو؟ ہاں، بہت، وہ میرے طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے انڈیا میں لوگ قدیم تاریخی چیزوں کو ٹھیک سے سنبھال کر نہیں رکھتے۔ دیکھو نا، اس کی ایک طرف خشک گھاس سی اگی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات پر ری ایکٹ کروں، لاؤڈ اسپیکر پر سے آواز آتی ہے، پیور اسٹیشن پلیز، فلائٹ ورتھ سے پیسنجرز۔ ہاں، رچرڈ اپنا بیگ لیے اٹھتا ہے۔ ریچرڈ اپنا بیگ لیے اٹھتا ہے۔ وہ فقرہ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے جو مجھے رخصت ہوتے وقت ہاتھ ملاتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ میں بیکار ہی سارناتھ گیا توپ دیکھنے کے لیے۔ دفتر میں جیسے تیسے بھی دن کٹتا ہے۔ میں وقت سے پہلے ہی اٹھ کر چل دیتا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ چاہے میری پوری جائیداد لگ جائے، سیلون میں جا کر حجام بنواؤں گا، پھر کوئی دنیا کا اور کام کروں گا۔ جبھی میں اپنے آپ کو یونیورسٹی ہیرو کٹنگ سیلون کے سامنے پاتا ہوں، جو گراؤنڈ ٹرینک روڈ پر ہونے کے بجائے خود آباد کے ایک کونے میں ہے۔ سامنے اس کا نام بورڈ لگا ہے۔ اس نے نیچے دیکھا ہے، پروپریٹر ناصر حسین۔
अंदर दाखिल होते ही मैं एक ऐसी कुर्सी पर जा बैठता हूँ जिसमें मुझे माँ की गोद का सा महसूस होता है। नासिर हुसैन मेरे पास आता है। उससे पहले कि अपने हाथ से कटवा मेरे गले में नाद दे, वो मुझसे पूछता है, आप शिया हैं या सुन्नी? जी, मैं हैरान होता हूँ। पूछता हूँ, आप शिया हैं सुन्नी? क्यों भाई? मैं कहता हूँ, हज्जाम शिया सुन्नी से क्या ताल्लुक़? माफ़ कीजिएगा, मैं सुन्नियों के हज्जाम नहीं बनाता। आप शिया हैं? हाँ। तब तो उल्टा आपको सुन्नियों से के खूब ही हज्जाम बनाने चाहिए। वैसे मैं हिंदू शिया हूँ। बुधना चंद मेरा नाम है। बुधना चंद माना ओ, नासिर हुसैन कहता है, फिर ठीक है, मुझे सिर्फ सुन्नियों से नफ़रत है। उससे तो हिंदू भी लाख दर्जा अच्छे हैं। फिर तो तौलिया मेरे गले में डाल देता है और सुनता ही नहीं कि मुझे हज्जाम बनवाना है या नहीं कटवाना। आखिर उसे पता चल जाता है कि वह शेविंग ब्रश ले कर मेरी तरफ बढ़ता है। जब ही मेरे चेहरे की तरफ देखकर वो एकदम रुक जाता है, फिर गौर से देखता है और शेविंग स्टाइल को एक तरफ रख कर देता है और कहता है, आप उठ जाइए। क्या मतलब? हजामत को करीब आकर वो दूर बैठते हुए कहता है, आप कहता हूँ, कहा ना मैं सुन्नी नहीं। सुन्नी उन्नी की बात नहीं, बात यह है तो फिर क्या बात है? मैं खुशी के गयार पर सवार था। लखनऊ में पहली बार किसी अंग्रेज़ ने उड़ाया था। उसके पंक्चर हो जाने से एकदम भू की आवाज़ से नीचे आ रहा हूँ। नासिर हुसैन कहता है, किसी ने आपसे शेव शुरू की थी? हाँ, मैं कहता हूँ, लोकपति ने संगम पर। ग्रेट आदमी है। जब भी कुछ भी हो, नासिर हुसैन आवाज़ में एक कतईयत पैदा करते हुए कहता है, कितना भी ग्रेट हो, लेकिन बात यह है कि किसी के चेहरे पर कोई साझी हज्जाम एक बार कैसा ही ख़त लगा दे, कोई दूसरा हज्जाम उसे टच नहीं कर सकता। यह हमारी यूनियन का कानून है। आपकी यूनियन की ऐसी की तैसी एकदम आग बगोला होकर कहता हूँ, एक तरफ हमारे हाकिम हैं, दूसरी तरफ का मगार कामगार मजदूर और उनकी यूनियन, बीच में हम लटके रहे हैं। क्या आपने किसी बुज़ुर्ग से नहीं सुना, मर और मरने दो, हम जाने तो कहीं जाएं। बाहर नासिर हुसैन ने कहता है, मैं एकदम सब कुछ भूल कर पहले बाहर की तरफ देखता हूँ और फिर इस बात के बारे में माने समझता हूँ। मुझे उम्मीद ही न थी। यूनिवर्सिटी हीरो कटिंग सैलून का नाम नासिर हुसैन आज़ादी के बाद मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। होश में आते हुए नासिर हुसैन से कहता हूँ, मैं तुम्हारी यूनियन के ख़िलाफ़ स्ट्रैटेजी करवाऊँगा, भूल हड़ताल करवाऊँगा। मैं पंडित जी के तक पहुँचाऊँगा जो यहाँ के रहने वाले हैं, अपने वतन हैं। इलाहाबाद में एक बार आने दीजिए उन्हें। मैं कहूँगा, पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? अभी तक इस उम्र में आपने देश का मामला ठीक ना किया तो बड़ा बुरा होगा। और जब कुछ समझ में ना आया तो मैं नासिर हुसैन के हुजूर में गिड़गिड़ाते लगता हूँ, नासिर जी, आप मुझसे 100 रुपये 10-20 रुपये ले लीजिए, लेकिन भगवान के लिए भगवान नहीं, अल्लाह के लिए एक बार मेरी हजामत बनवा दीजिए, नहीं तो मैं दुनिया जहान में कहीं मुँह दिखाने के काबिल ना रहूँगा। सब मुझ पर हंस रहे हैं, एक मैं ही रो रहा हूँ, बजाय इसके कि नासिर हुसैन मेरी हालत पर रहम खाए। वह कहता है, रात हो गई, उस वक्त तक कोई मुँह नहीं देखेगा, बेकार है, सब कुछ बेकार है। चुनांचे मैं कोई फर्जी छड़ी उठाकर फर्जी हवा में से घुमाता हूँ, किसी फर्जी घर की तरफ चल देता हूँ। रात भर विद्या मेरी बीवी मेरे पास नहीं आती। मुझे यूँ मालूम होता है जैसे मैं कबूतर हूँ जैसे किसी ने लाल रंग का लगा दिया है, और चिड़िया हूँ जिसे गले में किसी ने फुदना डाल दिया है। अब मेरी ही अजीज़ मुझे अपने घर में घुसने नहीं देते, जो पंजे मार कर लहू लुहान कर देता है। मैं काट कर भगाने देने की कोशिश मैंने है। तड़के ही उठकर
मैं संगम की तरफ चल देता हूँ और लोकपति के पास पहुँच कर हाथ जोड़ता हूँ। है लोकपति, भगवान के लिए मेरी हजामत बनवा दो। तुमसे कब से मुझे इस हालत में लटका दे रखा है। ये जीता हूँ न मरता हूँ, हालांकि मैंने तुम्हें पूरा टैक्स दिया है। लोकपति, जिसने किसी चेहरे पर कुछ खत लगा कर रखे थे, उसे छोड़ देता है और कहता है, आप ज़रा ठहरिए श्रीमान। नहीं, ये कैसे हो सकता है। वह आदमी हजाम करता है, एहतजाज करता है। मुझे दुकान पर जाना है, सबों को जाना है भैया। लोकपति कहता है, सबों को जाना है। कल उनकी हजामत बीच ही में रह गई थी। ये जाने भाड़ में और तुम जाओ जहन्नुम में। और आदमी मुंह पर कफ लाते हुए कहता है, इनको तो कल की हजामत रह गई है। मैं पिछले इतवार से अनमुंडा बैठा हूँ। मालूम होता है उस आदमी की बर्दाश्त आखिरी हद तक पहुँच गई है और लोकपति के मारेगा। लेकिन लोकपति एक ही गड़े नजर आ रहा और हाथ में उस्तरा देख कर कहता है, अच्छा, मत भूलो, उनके मेरे बारे में है, उनके बाद मेरी बारी है। और मैं इत्मीनान से लोकपति के हाथ में अपना गुल दे देता हूँ और सोचता हूँ कि कुछ भी हो, लोकपति आदमी ही बड़ा नहीं, मामले का भी बहुत खड़ा है। थोड़ी ही देर में चेहरे का वो हिस्सा साफ हो जाता है जो कल की अनकटारे का गया था। मैं उस पर हाथ फेरता हूँ। क्या नर सड़क लोग बल्कि ऑटो हाइल की तरह से ना साफ है, जिस पर कोई भी मेल की रफ्तार से गाड़ी चला सकता है। जब ही लोकपति मुझसे कहता है, अब आप उठ जाइए। क्या मतलब? मैं आखिरी बार हैरान होकर पूछता हूँ। जो अनकटा रह गया है वो मैंने काट दिया। मगर मैं चेहरे के दूसरे हिस्से पर हाथ फेरते हुए कहता हूँ, रात में इधर भी तो बाल उठ आए हैं, कट जाएंगे बब्बुआ, वो भी कट जाएंगे। लोकपति उस्तरा करते हुए कहता है, बारी से सब ठीक हो जाएगा। और मैं डाइक पर खड़े अपनी बारी का इंतज़ार करने लगता हूँ, जो आएगी जो नहीं आने की। शक बुलंद आवाज़ से इतनी फतहमंदी पर हंस रहा है। चंदबान ना मालूम किसको देख कर एक्टर से जमुना का वह शेर पढ़ने लगता है जो उसने फिल्म देवदास में बोला था, अपने दुख मुझे कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पास होता। कौन पढ़ता है? बुधना चंदा पड़ता है, बुधना चंद शायर पड़ता है। सामने में दरिया में औरतें भी है, एक दो सीज़ा से हर किस्म की शर्म हया से बेनियाज होकर सब कपड़े उतार दिए और जोर से उन्हें दूर किनारे की तरफ फेंक दिया और पूरे पर तवाल करते पानी में कूद गई। जितने रोज़ से पानी उसके से लपेट कर आया, उसी हसीन ड्योग के बाद अभी वो सतह पर नहीं आती है। मालूम होता है नीचे सरस्वती की था पाने की कोशिश कर रही है। यात्री लोग ना मालूम क्यों एकाएकी चौकस हो गए हैं और पंडों की भूल नहीं बकते वो टोकरियां हाथ में लिए सबकी तरफ बड़बड़ा रहे हैं, देख रहे हैं। किले जैसे शहंशाह अकबर ने बनवाया था एक मुनि ईचर हो गया है। हाँ, जो वक्त के अजायब घर में पड़ा है। समुंदर ज़मीन में धंस चुकी है और बंदर शायद ऊपर चांद, शुक्र और मंगल पर कूद गई है। जवाब हमारे धरती के शोबे हो चुके हैं। एक फ़कीर जो शक्ल से हकीम वक्त मालूम होता है, बद्दुआ देता है। मुझे दुआ मालूम होती है, जा बच्चा, सेफ्टी के सिवा तेरा कोई दारू नहीं। मैं खुशी घर लौट जाता हूँ, जिसका रास्ता बाजार में से होकर जाता है।